ایک خاتون کی حقیقی کشش صرف اس کے میک اپ، زیورات یا مہنگے لباس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نزاکت اور خود اعتمادی کے حسین امتزاج میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ دنیا ان کی عزت نہیں کرتی جو ہر وقت توجہ کی بھیک مانگتی ہیں، بلکہ ان کی عزت کرتی ہے جو اپنی قدر خود پہچانتی ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہوں اور آپ کو سنجیدگی سے لیں، تو آپ کو اپنی ذات میں یہ 15 بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ یہ محض عادات نہیں، بلکہ ایک باوقار خاتون کا لائف سٹائل ہیں۔ نمبر 1، پر اصراریت قائم رکھیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر کوئی کھلی کتاب بنا ہوا ہے، وہاں پر اصراریت ایک نایاب اور قیمتی صفت بن چکی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان اس چیز میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے جسے وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ اگر آپ پہلی ہی ملاقات میں یا فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل، اپنے سارے دکھ، اپنی لڑائیاں اور اپنے منصوبے نشر کر دیں گی، تو لوگوں کی دلچسپی آپ میں ختم ہو جائے گی۔ سب کچھ ظاہر کر دینا کشش کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کے گرد تھوڑا سا پردہ اور رازداری رکھیں، یہ لوگوں کے تجسس کو بڑھاتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کم بولیں اور زیادہ سنیں، اور اپنے پتے آہستہ آہستہ شو کریں۔ جو کتاب پوری کھل جائے لوگ اسے پڑھ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن جو ورق ابھی پلٹنے باقی ہوں وہ دلچسپی برقرار رکھتے ہیں۔ ایک پرکشش خاتون کبھی بھی عوامی تماشا نہیں بنتی، وہ ایک ایسا راز رہتی ہے جسے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے مگر جان نہیں پاتا۔ نمبر 2، نرمی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ آج کل کی دنیا میں اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ بااختیار نظر آنے کے لیے مردانہ انداز اپناتی ہیں، اونچی آواز میں بولتی ہیں یا سخت رویہ رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، نسوانیت کا سب سے بڑا ہتھیار نرمی ہے۔ پانی چٹان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، حالانکہ وہ نرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ راستہ بنانا جانتا ہے۔ چیخ کر بولنا یا جارحانہ انداز اپنانا کشش کو ختم کر دیتا ہے۔ نرم لہجہ، شائستہ الفاظ اور دھیما پن کمزوری نہیں، بلکہ ایک ایسی مقناطیسی قوت ہے جو سخت ترین دلوں کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ایک باوقار خاتون جانتی ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس کا تہذیب یافتہ انداز ہی کافی ہے۔ نرمی کا مطلب دب جانا نہیں، بلکہ اپنے موقف پر شائستگی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ جب آپ غصے کے جواب میں مسکراہٹ اور دھیمے لہجے کا استعمال کرتی ہیں تو آپ سامنے والے کو نفسیاتی طور پر غیر مسلح کر دیتی ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو صرف خواتین کے پاس ہے۔ نمبر 3، اپنی حدود کا تعین کریں۔ ایک پرکشش خاتون کبھی بھی عوام کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ ایک قلعہ ہوتی ہے جس کے دروازے ہر کسی کے لیے نہیں کھلتے۔ ہر کسی کے لیے ہر وقت دستیاب نہ رہیں اور نہ ہی ہر فضول بات کا جواب دیں۔ نہ کہنا سیکھیں، یہ لفظ آپ کی عزت نفس کا محافظ ہے۔ ایک پرکشش خاتون وہ ہے جس کے پاس اپنی اقدار اور حدود ہیں۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے، آپ کا وقت ضائع کرے یا آپ کو نیچا دکھائے تو فوراً اپنی حدود کھینچ دیں۔ جب آپ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے تو وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو چیز آسانی سے دستیاب ہو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اپنی دستیابی کو محدود کریں۔ جب آپ اپنی عزت کو ترجیح دیتی ہیں اور ٹاکسک لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالتی ہیں تو آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ عزت مانگی نہیں جاتی، اپنی حدود کا تعین کر کے کروائی جاتی ہے۔ نمبر 4، جذباتی ذہانت۔ خواتین قدرتی طور پر جذباتی ہوتی ہیں، لیکن جو خاتون اپنے جذبات کی غلام ہو وہ اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ روتے دھوتے رہنا، ہر وقت شکایات کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرامہ کوئین بن جانا انتہائی غیر پرکشش ہے۔
लोग ऐसे लोगों से भागते हैं जो इनकी एनर्जी चूस लेते हैं। एक बावकार खातून अपने जज्बात को समझती और कंट्रोल करती है। इसे गुस्सा भी आता है और दुख भी, लेकिन वो तमाशा नहीं बनाती। वो समझदारी और ठहराव से हालात का सामना करती है। ये सुकून दूसरों को आपकी तरफ खींचता है। जब दुनिया अफरा तफरी का शिकार हो और आप पुरसुकून रहें तो आप एक लीडर नजर आती हैं। जज्बाती जहानत का मतलब है कि आप जानती हैं कि कब बोलना है, कब खामोश रहना है और कब नजरअंदाज करना है। ये ठहराव आपकी शख्सियत में एक ऐसा रोब पैदा करता है कि लोग आपकी मौजूदगी में एहतियात बरतते हैं। नंबर 5, नफासत और सफाई। कशिश का ताल्लुक महंगे ब्रांड से नहीं बल्कि नफासत से है। आपने क्या पहना है, इससे ज्यादा अहम यह है कि आपने इसे कैसे पहना है। बेहंगम हुलिया, बिखरे बाल और मैले कुचैले कपड़े लापरवाही की निशानी है और लापरवाह इंसान को कोई संजीदा नहीं लेता। अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो दें। आपके नाखून साफ हों, बालों का अंदाज सुलझा हुआ हो और आपके जिस्म से एक बीनी बीनी खुशबू आ रही हो। कपड़े मौका की मुनासबत से हों और इस्त्री शुदा हों। ये छोटी छोटी तफसीलात बताती हैं कि आप खुद से मोहब्बत करती हैं। नफासत खुद की देखभाल का नाम है। जब आप आईने में खुद को देखकर अच्छा महसूस करती हैं तो आपका इत्मीनान 7वें आसमान पर होता है। याद रखें, लोग आपको इसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप खुद को देखती हैं। अपनी ज़ाहरी शख्सियत को इतना निखारें कि वो आपके अंदरूनी हुस्न की अक्कासी करे। नंबर 6, सुनने का फन। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो जवाब दे सकें, लेकिन एक पुरकशिश खातून समझने के लिए सुनती है। मुसलसल अपनी ही बातें करना, अपनी तारीफें करना या दूसरों की बात काटना खुद पसंदी की अलामत है। इसके बरक्स अच्छा सुनने वाला हमेशा बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला समझा जाता है। जब आप किसी को पूरी तवज्जो देती हैं, इसकी आंखों में देखती हैं और इसकी बात में हकीकी दिलचस्पी लेती हैं तो वो शख्स आपके साथ एक गहरा जज्बाती ताल्लुक महसूस करता है। लोगों को सुनना उन्हें अहमियत देने के मुतरादिफ है। जब आप दूसरों को बोलने का मौका देती हैं तो वो आपके बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपकी सोहबत पसंद करते हैं। ये एक नफ्सियाती हुनर है। कम बोलना और ज्यादा सुनना आपको पुरअसरार भी बनाता है और आपको दूसरों को समझने का मौका भी देता है। खामोशी और तवज्जो एक ऐसा तोहफा है जो आप दूसरों को देकर उन्हें अपना गर्विदा बना सकती हैं। नंबर 7, मुस्कुराहट आपका जेवर। मशहूर कॉल है कि आपका मेकअप अधूरा है अगर आपने मुस्कुराहट नहीं पहनी। एक पुरतपाक और सच्ची मुस्कुराहट महंगे तरीन मेकअप से ज्यादा मौसर है। ये बर्फ पिघलाने का काम करती है। ये लोगों को आपके करीब लाती है और माहौल को खुशगवार बनाती है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा फ्रेश और जवान नजर आता है। ताहम इसमें तवाज़ुन बहुत जरूरी है। ये मुस्कुराहट मसनूई या चापलूसी वाली नहीं होनी चाहिए और ना ही हर ऐरे गरे के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नरमी को गलत समझ लेते हैं। एक बावकार खातून की मुस्कुराहट इसकी मर्जी की ताबे होती है। ये उनके लिए एक इनाम है जो इसके मुस्तहिक हैं। अपनी मुस्कुराहट में आंखों की चमक शामिल करें, लेकिन साथ ही अपनी संजीदगी को बरकरार रखें। ये इम्तिजाज आपको काबिल रसाई भी बनाता है और पुरवकार भी। नंबर 8, इत्मीनान के साथ चलें। आप कमरे में किस तरह दाखिल होती हैं, ये तय करता है कि लोग आपके साथ कैसा सलूक करेंगे। आपकी चाल डाल बहुत कुछ बयान करती है। कंधे झुकाकर, सिमट कर या नजरें चुराकर चलना अदम तहफ़्फ़ुज़ की निशानी है। एक मलका की तरह चले, सर उठाकर, कमर सीधी रखकर और इत्तेदाल के साथ कदम उठाएं। आपकी चाल में उजलत या घबराहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक रिदम होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये पैगाम होना चाहिए कि आप अपनी जिल्द में पुरसुकून और मुतमईन हैं। जब आप इत्मीनान के साथ चलती हैं और लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखती हैं तो आपकी मौजूदगी महसूस की जाती है। ये इत्मीनान लोगों को मजबूर करता है कि वो आपके लिए रास्ता छोड़ दें और आपको इज्जत की निगाह से देखें। नंबर 9, ज़हानत और मुतालिया। सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती थोड़ी देर के लिए मुतासर करती है, लेकिन ज़हनी खूबसूरती उम्र भर के लिए कैद कर लेती है।
एक बेवकूफ खूबसूरत गुड़िया के मुकाबले में एक ज़हीन और बाखबर खातून का असर ज्यादा देरपा होता है। अगर आपके पास बात करने के लिए सिर्फ कपड़ों, मेकअप या लोगों की बुराइयों के सिवा कुछ नहीं तो आप जल्द ही बोरिंग हो जाएंगी। अपने जहन को वुसअत दें, हालाते हाजरा, अदब, नफ्सियात या किसी भी मौजू पर मालूमात रखें, मुताला करें, दुनिया को समझें। ये चीज आपकी गुफ्तगू को वजनी और दिलचस्प बनाती है। जब आप किसी मौजू पर अपनी राय देती हैं और जहानत से बात करती हैं तो लोग आपकी अक्ल के मदाह हो जाते हैं। जहानत वो कशिश है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। एक पुरकशिश खातून वो है जिसके साथ बैठकर लोग कुछ नया सीखें और उसकी बसीरत से मुतासर हों। नंबर 10, तारीफ कबूल करना सीखें। बहुत सी खवातीन में ये आदत होती है कि जब कोई इनकी तारीफ करता है तो वो शर्मिंदा हो जाती हैं या इनकार कर देती हैं। मसलन, अरे नहीं, ये सूट तो बहुत पुराना है, या मैं कहाँ खूबसूरत हूँ। ये आजिज़ी नहीं बल्कि कम इत्मीनान की निशानी है। अपनी तारीफ को रद्द करना ये जाहिर करता है कि आप खुद को इसका अहल नहीं समझती। जब कोई आपकी तारीफ करे तो इसे पूरे इत्मीनान और मुस्कुराहट के साथ कबूल करें। बस इतना कहें, शुक्रिया, आपकी नजर अच्छी है, या शुक्रिया, ये सुनकर खुशी हुई। तारीफ को कबूल करना आपके अंदरूनी इत्मीनान और खुद से मोहब्बत की अक्कासी करता है। ये सामने वाले की राय का एहतराम भी है। जब आप अपनी कदर जानती हैं तो आपको तारीफ सुनकर हैरत नहीं होती बल्कि खुशी होती है। ये छोटा सा अमल आपको एक पुरइत्मीनान और शुक्रगुजार शख्सियत के तौर पर पेश करता है। नंबर 11, दूसरों की नकल ना करें। आजकल सोशल मीडिया ने हर किसी को एक दूसरे की कॉपी बना दिया है। दूसरी खवातीन से मुवाजना करना या इन जैसा बनने की कोशिश करना छोड़ दें। जब आप किसी और की नकल करती हैं तो आप अपनी असलियत खो देती हैं। आपकी इनफरादियत ही आपकी असल ताकत है। अपनी खामियों को कबूल करें और अपनी खूबियों को निखारें। असल हीरे की कीमत हमेशा मसनूई हीरे से ज्यादा होती है। आपका अंदाज, आपका लहजा और आपकी सोच आपकी अपनी होनी चाहिए। जो खातून अपनी हकीकत के साथ खुश रहती है और बनावट का सहारा नहीं लेती, वो सबसे ज्यादा पुरकशिश होती है। लोग फेक लोगों को पहचान लेते हैं और इनसे दूर हो जाते हैं। अपनी इनफरादियत पर फख्र करें। आप जैसी कोई दूसरी नहीं और यही आपका सुपर पावर है। नंबर 12, जिंदगी का मकसद रखें। वो खातून सबसे ज्यादा पुरकशिश और काबिल रश्क होती है जिसकी जिंदगी में मर्द, रिश्तों या फैशन के अलावा भी कोई बड़ा मकसद होता है। एक फारग और बेमकसद इंसान की शख्सियत मध्यम पड़ जाती है। चाहे वो आपका करियर हो, कोई हुनर हो, तालीम हो या समाजी खिदमत। जब आपके पास अपना एक जुनून, पैशन होता है तो आपकी शख्सियत में एक अलग ही चमक आ जाती है। ये जाहिर करता है कि आप एक खुद मुख्तार और पुरअज़म इंसान हैं। जुनून आपकी आंखों में एक ऐसी रोशनी भर देता है जो किसी काजल से नहीं आती। जब लोग देखते हैं कि आप अपने काम से मोहब्बत करती हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो वो आपसे मुतासर होते हैं। एक बामकसद खातून किसी के सहारे की मोहताज नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। नंबर 13, गीबत और मनफी गुफ्तगू से परहेज। एक बावकार खातून की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो गीबत नहीं करती। छोटी सोच वाले लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं जबकि बड़ी सोच वाले लोग आइडियाज के बारे में बातें करते हैं। किसी की पीठ पीछे बुराई करना, चुगली खाना या दूसरों की जिंदगियों में कीड़े निकालना एक इंतहाई गैर पुरकशिश आदत है जो जाहिर करती है कि आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। मनफी गुफ्तगू से परहेज करें। जो औरत हर वक्त दूसरों की बुराई करती है, लोग इस पर कभी भरोसा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि कल ये उनकी बुराई भी करेगी। अपनी महफिल को मुस्बत रखें, दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखें। जब आपका दिल साफ होता है और जुबान पर मुस्बत अल्फाज होते हैं तो आपके चेहरे पर एक रूहानी नूर आ जाता है। एक पुरकशिश खातून अपने अल्फाज से दूसरों को ऊपर उठाती है, ना कि नीचे गिराती है। नंबर 14, खुद इन्हसारी। आज के दौर में खुद इन्हसारी कशिश का एक लाजमी जुज़ है। वो खातून जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों, शोहर, बाप या भाई का मुंह नहीं तकती, इसका वकार अलग होता है। यहाँ मुराद सिर्फ माली आजादी नहीं बल्कि जज्बाती आजादी भी है।
जरूरतमंद होना कशिश का कातिल है। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। जब आप खुद कमाती हैं या अपने फैसले खुद करती हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक ठोस इत्मीनान आ जाता है। लोग जानते हैं कि आप इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि आप चाहती हैं, ना कि इसलिए कि आप मजबूर हैं। खुद मुख्तारी आपको एक मजबूत पार्टनर बनाती है, बोझ नहीं। एक खुद इन्हिसार खातून अपनी जिंदगी की खुद CEO होती है और ये ताकत इसे बेपनाह पुरकशिश बनाती है। नंबर 15, शुक्रगुजारी और इत्मीनान। आखिरी और सबसे अहम नुक्ता शुक्रगुजारी है। जो खातून हर वक्त रोती रहती है कि मेरे पास ये नहीं, वो अपनी खूबसूरती खो देती है। इसके बरक्स शुक्रगुजार खातून के अंदर से एक मुस्बत शुआ वाइब निकलती है जो सबको अच्छी लगती है। इत्मीनान चेहरे का बेहतरीन फेशियल है। अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों पर शुक्र अदा करें। खुश रहना एक आदत है और ये आदत आपको मकनातीस बना देती है। लोग खुश और खरम लोगों के पास रहना पसंद करते हैं। शुक्रगुजारी आपके अंदर हसद और जलन को खत्म कर देती है और जब दिल हसद से पाक हो जाए तो चेहरा खुद ब खुद चमकने लगता है। एक पुरसकून और शुक्रगुजार दिल वाली खातून दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होती है क्योंकि इसकी खूबसूरती इसकी रूह से फूटती है। याद रखें, कशिश और वकार बाजार में नहीं बिकते, ये आपके अंदर से फूटते हैं। ये 15 असूल आपको मगरूर नहीं बनाते बल्कि आपको एक मलका का दर्जा देते हैं जिसके सर पर इत्मीनान का ताज होता है। शहजादी तवज्जो मांगती है, मलका एहतराम का हुक्म देती है। जब आप खुद अपनी कदर करना सीख लेती हैं और अपनी नस्वानियत को अपनी ताकत बनाती हैं तो दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। तवज्जो की भीख मांगना छोड़ें और इन आदत को अपनाकर दिलों पर राज करना शुरू करें। मुहर्रक को देखती रहें, सुनती रहें क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।